Good morning, students. Myself, Sarita Chaudhary, TGT Science teacher from St. Joseph Public School, Tonk. In previous video, we started new chapter of science, that is chapter number 8, motion, and we covered the introductory part of this chapter, that how motion can be defined if any object changes its position with respect to some stationary objects in its surrounding, that is called as motion. Now, motion and rest are relative terms. That means if one object is in the state of motion for the one person, then that same object can be in the state of rest for the another person. किसी एक इंसान के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन स्टेट में हो सकता है, वही सेम ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पर्सन के लिए रेस्ट कंडीशन में हो सकता है. You also learned about the scalar quantities and vector quantities. Those quantities which only show the magnitude, numerical values are called as scalar quantities. Like distance, time, they are the scalar quantities. इनमें से हम numerical value बताते हैं. That we have covered 10 kilometer distance, 20 kilometer distance, or we have passed 1 hour, 2 hour, 3 hour till 1 p.m. or 2 p.m. In these quantities, we do not mention any sort of directions. हमने यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताया है. So these are the scalar quantities. Then what were the vector quantities? Those quantities which show the magnitude as well as the direction. जो किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी इंडिकेट करें कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किस डायरेक्शन में हो रहा है. Those quantities are called as vector quantities. Then we also learned in detail about the distance. What the distance is? It is the actual path covered by an object. किसी ऑब्जेक्ट ने अपने इनिशियल पॉइंट से, जहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, ट्रेवलिंग स्टार्ट की है, वहाँ से अपने डेस्टिनेशन, दैट मीन्स द फाइनल पोजीशन तक पहुँचने में उसने कितना पाथ कवर किया. That path can be a straight line, that path can be circular, that path can be curved, किसी भी डायरेक्शन के अंदर, किसी भी पैटर्न के अंदर, फॉर्मेट के अंदर वो उसका पाथ हो सकता है. So the actual path covered by an object is called as distance. In continuation of that part, आज समझते हैं that what the displacement is. ये displacement क्या चीज है? Now to understand the concept of displacement, let's recall the distance once again over here. Just say that this is the initial point of an object. ये किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट है. यहाँ से this is the final point, right? And an object traveled this curved path to reach to its destination. ऑब्जेक्ट ने यहाँ से, just imagine that this is your house and this is your friend's house and the weather is so pleasure, बहुत ही pleasure weather अभी है, तो आपने enjoy करने के लिए instead of going straight to your friend's house, आपने बहुत सारे curved paths use किए हैं to reach to your friend's house, right? So this actual path covered by this object, this is the distance, right? जो एक्चुअल पाथ कवर किया उसको तो हमने डिस्टेंस करा है. बट इज देयर एनी शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच टू योर फ्रेंड्स हाउस? अपने फ्रेंड के घर तक पहुंचने के लिए क्या हमारे पास कोई डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ प्रेजेंट है? द आंसर इज यस. इफ वी मूव इन द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम हियर टू हियर, फॉर श्योर this path is smaller in the comparison of this curved path. So how we can define displacement? This is the displacement. इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. एक इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. बट डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू इट्स फाइनल पॉइंट. नाउ बात करते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. So let's remember that distance and displacement, they both share same standard international unit. The SI unit of distance, that is meter, and the same way the SI unit of displacement, that is also
मीटर, वो भी मीटर ही होता है, which is denoted by small m, because इसके अंदर भी हम क्या कवर कर रहे हैं, पाथ ही कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस को ही कवर कर रहे हैं. Then what is the difference between the distance and displacement? दोनों में डिफरेंस क्या होता है? The major difference is that distance, it is always a scalar quantity because it only tells about the magnitude, कि हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 5 मीटर, 10 मीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, राइट. Whereas the displacement, it is a vector quantity. Displacement एक vector quantity है. Why it is so? Because the displacement along with the distance, along with the path covered, we also show the direction. इससे हमें बताना पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्ट ने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में it has covered the 10 meter distance, then the 10 meter distance is traveled in which direction? It is traveled in this direction. अगर उसने भी ट्रैवलिंग इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में की है, from east to west direction, then that is the displacement. तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा क्या होती है, it gives the magnitude. मैग्नीट्यूड मींस उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, प्लस इट शोज द डायरेक्शन आल्सो, वो हमें उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी बताता है. तो अगर हम कह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 10 मीटर, तो उस सेम ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इट वुड बी 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, 10 meter in east direction. And how the displacement can be shown? Displacement को simply show करने के लिए we put an arrow above this numerical value. इस numerical value के ऊपर अगर हमने arrow show कर दिया है, that means this is a kind of displacement. And if we are simply writing 10 meter, हम numerical value अगर लिख रहे हैं, then it is the distance. So this is the difference between the distance and displacement. Distance is a scalar quantity, whereas the displacement is a kind of vector quantity. तो अगर हमें शॉर्ट में डिफाइन करना हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो we can say displacement is the distance, shortest distance from the initial point to the final point in a particular direction, इस particular direction के अंदर. और क्या क्या डिफरेंसेस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर? हमने पढ़ा था that distance it can never be zero, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती. It can never be negative, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. It is always positive. डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है. लाइक अगर हमने अपनी ट्रैवलिंग यहाँ से स्टार्ट की है, तो यहाँ तक पहुँचने में हमने कुछ तो पाथ कवर किया ही है, तो ये कभी भी जीरो तो हो ही नहीं सकता. If the object is traveling no distance or zero distance, that means that object is in the state of rest. अगर मैं कह रही हूँ कि ऑब्जेक्ट ने यहाँ से लेके कोई ट्रैवलिंग की नहीं है, कोई रास्ता कवर किया ही नहीं है पाथ, दैट मींस ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है, वो रेस्ट की कंडीशन में है. तो इसका मतलब डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती. डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी. जस्ट इमेजिन कि ऑब्जेक्ट ने यहाँ से ट्रैवलिंग स्टार्ट की, वो यहाँ तक पहुँचा है एंड इट हैज कवर्ड द 2 मीटर डिस्टेंस. तो हम टोटल डिस्टेंस उसे कैसे निकालते हैं? Total distance is calculated by the final point minus origin. हम final point में से जब origin को minus करते हैं तो distance निकलेगी हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी final point क्या है, it is the 2 meter, और हमारा initial point यहाँ पे तो 0 था उसका distance, तो ये कितना हो जाएगा 0, and 2 minus 0 is the 2 meter. तो आगे यहाँ पे प्लस का साइन रहता है, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती. राइट. अब बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं. स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी जीरो. डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. इन व्हाट कंडीशंस इट कैन बी जीरो? लेट्स अंडरस्टैंड दैट पार्ट हियर. इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में, किसी कर्व्ड पाथ के अंदर ट्रैवलिंग कर रहा है, एंड इट वाज इट्स इनिशियल पॉइंट, ये उसका इनिशियल पॉइंट था जहाँ पे कितना था, पाथ कितना मीटर शो कर रहा है, 0 मीटर अभी उसका है,
और यहाँ से लेके इतना कवर करने के बाद एरिया, जस्ट इमेजिन कि इसे टोटल इस पाथ कवर करने में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, से इट इज 10 किलोमीटर। हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, 10 किलोमीटर की है। और इतनी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इट इज अगेन रीचिंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही वापस पहुंच चुका है। तो इट वाज इट्स इनिशियल पॉइंट as well as it is its final point also, यही उसका फाइनल पॉइंट भी है। घर से निकल के हम मार्केट जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, हमने कोई कुछ भी शॉपिंग किया है और करने के बाद वापस हम घर पे ही पहुंच गए, तो हमारा इनिशियल पॉइंट भी हाउस था और हमारा फाइनल पॉइंट भी क्या हो गया, हाउस हो गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो कितनी होगी, 10 किलोमीटर। बट व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, it is the shortest path between the initial point and the final point। तो इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट भी यही है। दैट मींस हमने यहाँ पे क्या बताएंगे इसका, हम इनिशियल अगर हम उसे कैलकुलेट करें वैल्यू को, तो ये कितना हो जाएगा, इट इज 10 किलोमीटर इज द फाइनल डिस्टेंस, और इनिशियल भी कितना है उसका 10 ही है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 10 - 10 बिकम्स 0। जब भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक दूसरे को कंसाइड करते हैं, ओवरलैप करते हैं, इफ दे आर सेम, दैट मींस वहां पे उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 आता है। आप समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव आल्सो, पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो कब हम डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव कहेंगे और कब हम डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव कहेंगे, ये समझते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे। And to understand the concept of negative and positive displacements, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। Say this is the initial position of an object, ये किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पॉइंट है, हमें इसको कह दिया ये ओरिजिन है, ओ राइट। और यहाँ से ट्रैवलिंग करके ऑब्जेक्ट इज रीचिंग ओवर हियर, इट इज द 5 मीटर डिस्टेंस, देन ऑब्जेक्ट इज रीचिंग ओवर हियर, अगेन इट इज 5 मीटर डिस्टेंस, and object is reaching finally over here, again this is the 5 meter distance। ये जो इंटरवल इनके बीच का दिस इक्वल इंटरवल 5 मीटर चल रहा है। तो ऑब्जेक्ट ने यहाँ से, इट वाज द इनिशियल पॉइंट ओरिजिन एंड ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है यहाँ पे, दिस इज द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सो इफ समबडी आस्क्स यू दैट व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, तो हमें बता दिया इट इज 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर, दैट इज इट इज टोटल 15 मीटर। बट अगर हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ से वापस, इट इज रिटर्निंग बैक, वापस रिटर्न होके आ रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, एंड नाउ दिस इज द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन क्या है, यहाँ पे है। अब इस केस में आपसे पूछा किसी ने कि डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस तो हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 5 + 5 + 5 इट इज 15 meter plus again coming back to 5 and 5, that means it becomes 25 meter, distance तो 25 meter है। but what about the displacement, हम बात करते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उस ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का, दिस इज द इनिशियल पॉइंट and this one is the final point, वो वापस इसी जगह पे आ रहा है। so this is the shortest path, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इनिशियल फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हुआ, इट इज 5 मीटर, कितना डिस्प्लेसमेंट आ गया, 5 मीटर। अब इस 5 मीटर को कब हम पॉजिटिव कहते हैं कब हम नेगेटिव कहते हैं, वो समझते हैं यहाँ पे। इफ ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, वो अपने ओरिजिन से अपने फाइनल पॉइंट की तरफ अगर मूवमेंट कर रहा है, तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट था। अभी हमने कहा कि ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी एंड दिस वन इज इट्स फाइनल पोजीशन, दैट मींस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवलिंग किस डायरेक्शन में की है, इस डायरेक्शन के अंदर की है, और कितनी ट्रैवलिंग की है, 5 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवलिंग की है, शॉर्टेस्ट पाथ उसका ये है। तो अब इस जगह पे हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज ऑलवेज द डिस्प्लेसमेंट
can be calculated by subtracting the final point minus origin. अगर हम उसके फाइनल पॉइंट को ओरिजिन से सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकलता है। यहाँ पे फाइनल पॉइंट कितना है, इट इज 5 मीटर, और ओरिजिन कितना था, इट इज 0 मीटर। तो 5 माइनस 0 कितना आ जाएगा, इट इज 5 मीटर। यहाँ पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, अभी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। बट इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टू द ओरिजिन, अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन शो कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है, तब उसको हम कहते हैं नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। कैसे, इसको भी समझते हैं। नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज रीचिंग ओवर हियर, ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच रहा है, ये उसका फाइनल पॉइंट है, बट पहले तो ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक गया है। अब ऑब्जेक्ट ने अभी ट्रैवलिंग यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ पर पहुंच रहा है, इस पॉइंट तक पहुंचा, दैट मींस ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग द बैकवर्ड डायरेक्शन मोशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इट वाज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट whereas this one is the negative displacement। and now how it can be calculated, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल कितना था, इट इज 15 मीटर, राइट। दैट मींस ये इसका जो इन्होंने इनिशियल पॉइंट लिया है, ये कितना आ गया है इनका 15 मीटर, और इनका जो फाइनल पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पे है, 5 मीटर की डिस्टेंस पे है। हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है, इट इज 5 मीटर, और जहां से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की है वो कितने है टोटल 15 मीटर, दैट मींस 5 माइनस 15, आंसर वुड बी माइनस 10 मीटर। यहाँ पे आंसर किसमें आ रहा है, माइनस के अंदर आ रहा है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, इसको हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो आई होप द कांसेप्ट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट इज कंसीडर्ड एज जीरो, जब भी फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम हो किसी ऑब्जेक्ट के लिए। अगर ऑब्जेक्ट ने अपने हाउस से जर्नी स्टार्ट की है एंड इज कमिंग बैक टू इट्स हाउस, दैट टाइम द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। व्हेन इट इज अ पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, when the object is traveling in the front direction from the origin। अगर origin से front direction में अगर motion कर रहा है तब वो वैल्यू क्या होगी, that is a positive displacement। कैलकुलेट कैसे करते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस ओरिजिन, फाइनल पॉइंट यहाँ पे कितना है 5, ओरिजिन कितना है 0, कितना आ जाएगा 5 मीटर। सो द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव वैल्यू कब होगी, whenever the object is showing the बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो कवर कर रहा है बट किस डायरेक्शन में कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कैसे कैलकुलेट किया, फाइनल माइनस ओरिजिन। जस्ट इमेजिन कि ऑब्जेक्ट का फाइनल पॉइंट यहाँ पे है 5 मीटर और ओरिजिन उसने यहाँ से ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी, तो यहाँ तक उसकी डिस्टेंस टोटल कितनी थी, इट वाज 15 मीटर। तो 5 minus 15 becomes the minus 10 meter negative displacement it is। अब एक चीज और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे whenever we differentiate the distance and displacement, that distance it can be same to the displacement। distance और displacement किसी ऑब्जेक्ट के लिए सेम हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहे हैं and this is the initial point and this one is the final point of the object, right। तो ये इसकी टोटल क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। एंड अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स के बीच में देयर इज नो अदर शॉर्टेस्ट पाथ, यही शॉर्टेस्ट पाथ है, कोई दूसरा छोटा रास्ता इनके बीच में नहीं है, देन द डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो द सेम थिंग। सो इन सम केसेस whenever the object is traveling in straight path, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में डायरेक्शन में मोशन शो करेगा तो वहां पे उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो सकते हैं। एंड डिस्टेंस कैन बी बिगर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकती है। यहाँ पे हमने समझा था कि अगर ऑब्जेक्ट इतना कर्व्ड पाथ ट्रेवल करके अगर अपने पहुंच रहा है फाइनल डेस्टिनेशन तक, तो डिस्टेंस तो क्या होगी, इट इज ग्रेटर देन दी डिस्प्लेसमेंट, वो ज्यादा हो सकती है। एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, एंड डिस्प्लेसमेंट इट कैन नेवर बी मोर देन द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, just because of its definition
that displacement is the shortest path between the initial point and the final point. So in today's video, students, you learned about the displacement concept. You also got to know how you can differentiate the distance and displacement, because in examination either you may be asked to write a definition of distance or displacement, and most of the times the question comes in the form of the differentiation, how you can differentiate the distance and displacement. We'll continue our chapter in next video. Till then, thanks for watching.